मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। ठीक सर। Kumar ji, good Good morning. morning, sir. Good morning, everyone. Morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, Vijay. कैसे हो? How are you? All good? All good, sir. Yes, sir. All good, sir. Very good. Very good. आप कैसे हैं, sir? Yeah, so far so good. Yes, आप sir. सबकी good wishes हैं बस नहीं? सर दाढ़ी कटा के बहुत अच्छा लग रहा है। किसकी, मेरी या अपनी? असद जाफरी। सर मेरी ही बात कर रहा हूँ। अच्छा, जाफरी की? Yeah, you all are handsome looking. No? सनी भी ऑफिसर्स हैं यार। अच्छे क्यों नहीं दिखते? चलो, main thing, it is good looks are here, no? You should be good looking here. बाकी हमारे लिए looks के, हमारे लिए तो yes, how much IQ we have, how much common sense we can apply, that's most important. बाकी तो you can do anything, lipstick powder लगा के, कुछ भी कपड़े Levi's Lacoste पहन के, no? Modernness is not by Levi's Lacoste, it is modernness is here, no? चलो, good. So I think, yeah, all of you are there, maybe one or two guys. Good morning, sir. Good morning, Vijay. Good morning. So, Good morning, sir. Good morning, dear. We were doing this storage calculation. So just to recap once again back, that storage calculation is nothing. It is just a relationship between your space and how much cargo you can load. So ships are basically designed, if you see, to carry the maximum cargo, isn't it? And my intention should be, whenever I am making a cargo plan, whenever I am doing anything, I should be able to utilize the maximum space. Space is money on the ship. So this is the basic thing what we are studying is the stowage problems, that how to store the cargo, how to calculate that how much space this cargo will take in metric tons. So we have to book the cargo according to the space. So इसमें सबसे पहला हमारी जो factor था, that was your what we call the stowage factor. That is a basic thing which gives you a idea to how to calculate that how much space is required for anything. And then we know bale capacity, grain capacities are given of the ship. We know कोई भी cargo hold है आपका, whether bulk carrier or tankers, the volume is calculated by the shore people, isn't it? The guy who builds the ship, he gives you all the dimensions, he gives you everything calculated, that this space has got so many cubic meters, and then we know how to calculate the cargo. So stowage factors simply gives us what, that 1 meter cube of, for 1 cubic meter or 1 ton will require how many cubic meters. Basically it is the what we call the space utilized by unit weight of cargo. So if I know 1 ton occupies so many meter cube, 500 ton will occupy how many meter cubes, isn't it? Straightway multiply, so you know the volume. In case if I want to calculate the weight, that how many tons you have a cargo space, the volume is known to you, and if I divide that volume by the stowage factor, I get the weight, so many tons I can load. So these are the 2-3 simple things. And bale capacity, grain capacity, you know, bale capacity is right up to the extreme, I mean up to the frames, and grain capacity is right up to the extreme. So grain capacity is more, that is when you are loading bulk cargo, it can occupy all the spaces, whereas when you are loading packaged goods, cases, they will get stuck at the frames, stiffeners, so वो space आपकी waste होगी. So bale capacity is normally less, so you have to be careful when you are loading packages, then you have to use bale capacity, and if you are loading bulk, then you have to use grain capacity. And उसको निकालना बहुत आसान है, because it is given to you so much of bale capacity. What we did, like this question, 580 meter cube is the bale capacity and grain capacity is 635. So यहाँ से मैं relation निकाल सकता हूँ
that bale is less than your grain. चलो ये न्यूमेरिकल तो हमने कर लिया था, so today we will do little थोड़ा सा और that वहाँ पे हमने कार्गो डिस्चार्ज किया था. So here we are going to load the cargo. Well, let's see when we load cargo, then what happens. So this is also question number 4 in your book. If you want to see this, so this is a simple twin deck. Dimensions are given, bale capacity is given to you 780, and this space is to be filled up with 220 ton of cotton bales. Jiska stowage factor, broken stowage is given, and carpet rolls. So which is a common thing on the general cargo ships, that you load cotton bales, on top of cotton bales we can load the carpet rolls. Uski dimension दी है, and what is the maximum number of carpet rolls you can carry, and show how will you fit them in a plan view of the twin deck. Plan view means you are looking from top. तो इसको लिख लीजिए या whatever way you want to do अपनी notebooks में, and then we will see how we do it. तो लिख लोगे तो बताओ. Okay.
All of you have written down? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I just go to the board to explain you. I'm just on sharing the screen. Can you guys see the board? Yes, sir. Is it clear to everybody? Yes, sir. Okay. Now this is your cargo hold. He has given you the dimensions 13 by 10 by 6 meter length, breadth and height of the cargo hold, and the bale capacity is given to me. Now what I am interested is to load 220 tons of cotton bales. So can you calculate how much space these 220 tons of cotton bales will take? Now, broadly speaking, if you see in your question what is given, that I am going to load 220 tons of cotton bales, and then on top of this I am going to load your carpet rolls, isn't it? So what we have to do, we have to see that this is a twin deck, how many cotton, okay, cotton bales 220 tons, and how many rolls जिसकी dimension मेरे को दी है carpet rolls I can fit on top of these cotton bales. So your figure will look like this. This is your twin deck area sample. So I'm loading 220 tons of cotton bales here. So I have to calculate how much space will be required. Now, can you see how much space will be required? The stowage factor is given to you, which is 2.34. Stowage factor is 2.34 meter cube per ton, and broken stowage is also given, which is 7.5%. So what do we do first? सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम स्टोरेज फैक्टर निकालेंगे, isn't it? तो आपका स्टोरेज फैक्टर उसने दिया है, it is equal to 2.34 meter cube per ton, and broken storage is 7.5. So what will be the effective storage factor? कितना हो जाएगा इफेक्टिव स्टोरेज फैक्टर? 2.34 प्लस, बोलिए, 2.515. या प्लस 7.5%, दैट इज 7.5 डिवाइड बाय 100 ऑफ 2.34. ये जो स्टोरेज फैक्टर इसका 7.5% इसमें ऐड हो जाएगा. हाउ मच यू गॉट? 2.515. Okay, 2.515 meter cube per ton is the actual or effective storage factor for this cargo. Now you know the storage factor. Can you calculate how much space will be utilized for these cotton bales? 220 tons. Straight away, 1 ton requires 2.515. So 220 tons will require how much? Sir, into 2. Straight away multiply. Yeah, so we can multiply this, that 220 into storage factor 2.515. कितना आ गया? 553.4. Yeah, 553.41. ओके, 41 मीटर क्यूब. ये स्पेस अभी आपकी यूटिलाइज हो गई है. टोटल मेरे पास कितनी है? 780. So how much will be remaining? So 550 हो गई. That means it will occupy little more space. तो हम थोड़ी सी और बड़ा दिखा देते हैं कि भैया this much space is utilized by cotton bales. अब यहाँ पे मैंने रोल्स लोड करने हैं. सबसे पहले तो मैं देखता हूँ मेरे पास स्पेस कितनी बाकी है. So how much is the balance space or available volume for what we call available volume for carpet rolls? 780 मेरी बेल कैपेसिटी थी, माइनस 553 226.59. कितना आ गया? 226.5. 226.5. ओके, 226.5.
ठीक है 4-1 है तो मे बी 5-9 सर ब्लड आ रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा है। ये दिख रहा वैसे नहीं दिख रहा, क्लियर नहीं आया सर। हाँ सर ब्लड आ रहा है। नाउ सर अभी भी विजिबल नहीं है सर अभी भी बोर्ड। नहीं। आपके उसमें कैमरे में प्रॉब्लम आएगी लगता है। I think should be- थोड़ा सा बेटर है सर। yeah, now should be the best because I'm using the different camera now. Not yet clear? अभी तो कम हो गया है। सभी और अब कम हो गया ना? I think that तो यहाँ पे ठीक है। सर अब ठीक है, अब ठीक है। या तो अब आपके पास आ गई अवेलेबल वॉल्यूम लेफ्ट फॉर द कारपेट रोल इज सो मच, इजंट इट? अब मैंने ये स्पेस निकाल रही है तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ यार इस स्पेस में हाउ मेनी कारपेट रोल्स आई कैन लोड, हाउ मेनी टीयर्स ऑफ कारपेट रोल्स आई कैन लोड, सो देन आई कैन कैलकुलेट वन टीयर में कितने आएंगे एंड हाउ मेनी टीयर्स, हाउ मच हाइट इज अवेलेबल। सो कैन यू टेल मी हाउ टू कैलकुलेट द हाइट? अब ये मेरे पास स्पेस अवेलेबल है, इसमें हाउ मच हाइट इज अवेलेबल? 226.59 meter cube is the volume available here. This is the available space, available volume. How much height is available? Divided by area. Correct, very right. So available height, जिससे मेरे को पता लगेगा how many tiers I can load. So 226.59 divided by area, 13 into 10. कितनी आ गई? 1.743, isn't it? 226.59 को मैंने 130 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1.743. So now I know this much is the height available. Imagine yourself that you are standing on deck and watching down below on the twin deck level. So this much height is available. What is the height of one roll? सर ये हाइट फिर से बता दिए कैसे कैलकुलेट की? अच्छा, you know the volume of this space? आपके पास ये वॉल्यूम पता है, दिस इज 226.59. आपको इस होल्ड की लेंथ पता है, ब्रेड्थ पता है. कैन यू कैलकुलेट हाउ मच इज द हाइट ऑफ दिस स्पेस? टोटल वॉल्यूम इज दिस मच क्यूबिक मीटर्स. ये हाइट कितनी अवेलेबल होगी आपके पास? यू नो द लेंथ 13 मीटर, ब्रेड्थ इज 10 मीटर. अच्छा, what is volume? सर स्पेस ऑक्यूपाइड बाय गैस और लिक्विड. No, how much? How you calculate the volume of a cuboid? इसी स्पेस का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट. Correct. So length into breadth into height is equal to volume. Now I want to calculate the height. कैसे निकालूंगा मैं? यस सर, ठीक है सर. Volume divided by length and breadth. What is length and breadth? Area, isn't it? यस सर. Now you know your height is available so much. What is the height of one carpet roll? Question में पढ़िए. 0.85, 0.85. 0.85, isn't it? So that means इतनी height में आप how many tiers you can load? मेरे पास 1.74 है. एक कारपेट रोल की हाइट जो है वो इट इज गोइंग टू टेक सो मच स्पेस. हाउ मच? 0.85. तो 1.74 में कितने रोल आ जाएंगे, कितने टीयर आ जाएंगे? So 2 approx. 2 सर. Two Yeah. tier.
सिंपल 1.743 डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 0.85 नॉट 2 1.743 डिवाइड बाय 0.85 मेरे पास आया, isn't it? So I can load 2 tiers. So now I understood that I can load 2 tiers. अभी मैं क्या करूँगा? I will calculate in 1 tier how many carpet rolls I can load, isn't it? So अब आपके एक कॉमन सेंस इनोवेशन, यार ये मेरे पास स्पेस है, अब इसमें मैंने कारपेट रोल लोड करने हैं, तो कैसे लोड कर सकता हूँ? ना सिंपली पहले तो मैं यहाँ पे लोड करता हूँ कारपेट रोल इन दिस फैशन। और कारपेट रोल की लंबाई कितनी है? हाउ मच इज द 4 मीटर सर। 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर्स। एंड डाया कितना है उसका? 0.85 0.85 isn't it? अब ये स्पेस मेरे पास कितनी अवेलेबल है? हाउ मच इज दिस स्पेस अवेलेबल? लेंथ कितनी है? 13 मीटर 13 मीटर isn't it? एंड ब्रेड्थ ऑफ द होल्ड कितनी अवेलेबल है? 10 मीटर्स isn't it? एंड हाइट मेरे पास अभी आपने देख लिया 1.73 अवेलेबल है। लेंथ एंड ब्रेड्थ तो उतनी है होल्ड की। Now imagine yourself you are standing on deck and looking into the twin deck. So 13 मीटर का आपको होल्ड दिख रहा है लंबाई एंड 10 मीटर का। So in 13 मीटर में if I load the carpet rolls like this, in 13 meter each has got a dia of 0.85. How many rolls I can fit in here? 13 मीटर में 0.85 के हिसाब से कितने रोल्स आ जाएंगे? 15 approximately. 13 divided by 0.85, 15 rolls, isn't it? 13 मीटर मेरी लंबाई है, 0.85 एक रोल ऑक्यूपाई कर रहा है। नॉट अंडरस्टूड? मैं रोल्स को इस तरह से इस डायरेक्शन में मैं इनको लगाता जाता हूँ। ओके भाई, फर्स्ट ईयर जो है आप रोल्स को ऐसे लोड कीजिए। ये 13 मीटर की स्पेस है, ईच रोल इज ऑक्यूपाइंग 0.85 स्पेस। तो 13 मीटर में दिस वे आई कैन लोड 15 रोल्स। अब स्पेस कितनी गई मेरे पास? ये 4 मीटर चली गई। अब बाकी कितनी बची? 6 मीटर्स। 10 मीटर है ना ब्रेड्थ। 10 मीटर में यहाँ पे मैं रोल्स को जो है आई प्लान टू लोड इन दिस डायरेक्शन लाइक 4 मीटर्स, 4 8 एंड 4 12 मीटर स्पेस में लेंथ वाइज आई कैन लोड 3 रोल्स। अब ये स्पेस मेरे पास है कितनी? 6 मीटर। 6 मीटर में 0.85 के हिसाब से इन दिस डायरेक्शन हाउ मेनी रोल्स वी कैन लोड? 6 meter. 7 sir. Very good. So this way I can load basically say 7 tiers, isn't it? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देता हूँ। अब इसको हम निकाल देते हैं जिस वे अंडरस्टूड। तो चलो हम इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। तो दिस इज द स्पेस अवेलेबल। इस पे मैंने ये रोल्स अपने लोड करने हैं। ये मेरी 13 मीटर थी। ब्रेड्थ ऑफ द होल्ड वाज 10 मीटर। यू आर लुकिंग फ्रॉम टॉप। तो पहले मैंने यहाँ पे 4 मीटर पे ये रोल्स ऐसे लोड करने शुरू किए एंड दिस वे आई गॉट मेरे पास 15 रोल्स इस तरफ आ गए एंड इस डायरेक्शन में आई स्टार्टेड लोडिंग लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन। सो आई गॉट 10 मीटर की स्पेस मेरे पास अवेलेबल थी। सो हियर आई गॉट लाइक दिस। अब ये जो रोल्स थे वो बेसिकली आपको इस डायरेक्शन में ऐसे दिख रहे हैं। इफ यू आर लुकिंग फ्रॉम टॉप लाइक अ बर्ड्स आई व्यू, तो आपको ऊपर से जो रोल हैं ये कैसे दिखेंगे? तो ये कितने हो गए? 7 into 3, 7 7 7
21 रोल्स मैंने इस डायरेक्शन में लोड कर लिया 15। अब ये मेरे पास स्पेस बच गई, क्यों? 4 4 8 एंड 4 12, सो 1 मीटर की मेरे पास ये स्पेस बच गई। दिस इज 1 मीटर। मेरे रोल का डाया 0.85 है, तो मैं एक रोल यहाँ पे ऐसे लोड कर सकता हूँ। सर ये 4 8 12 कैसे कर रहे हैं सर? 4 8 12 ये कैसे इसको उसमें स्टोर किया है सर? दिस इज लाइक इन वन डायरेक्शन, 4.5 डायरेक्शन। आपकी जो होल्ड की लंबाई है, योर कार्गो होल्ड इज 13 मीटर्स लॉन्ग, इजंट इट? यस। अब 13 मीटर लॉन्ग है, तो एक तो मैं डायरेक्ट ऐसे कारपेट रोल को लोड करता हूँ अथॉर्ट शिफ्ट डायरेक्शन। इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन डेक एंड आप नीचे देख रहे हो ट्विन डेक को, कैसे दिखेगा आपको? दिस इज योर ट्विन डेक, यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड। अब ये लंबाई जो आपकी है 13 मीटर है, इस पे मैंने रोल्स ऐसे लोड करने शुरू कर दिए इन अथॉर्ट शिफ्ट डायरेक्शन में। ऐसे ऐसे मैं रोल जो है अपने लोड कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास 13 मीटर है, तो ये 15 रोल आ गए। अब इसी की अगर आप अदर साइड देखिए, एक तरफ तो मैंने अपने पोर्ट साइड में इस तरह लोड किए, स्टारबोर्ड साइड में मैंने इस डायरेक्शन में लोड करने शुरू कर दी। सर ये जो व्यू है ये टॉप व्यू है ना टैंक का? यस, टॉप व्यू, यू आर व्यूइंग फ्रॉम टॉप। प्लान व्यू होता है, प्लान का मतलब ये, प्लान व्यू इज बर्ड्स आई व्यू, दैट यू आर लुकिंग फ्रॉम टॉप। तो आपको ये ट्विन डेक कैसे दिखेगी? इट विल लुक लाइक दिस। जैसे ये सपोज ये प्लेट है, नाउ यू आर लुकिंग इनटू द प्लेट, हाउ इट विल लुक लाइक। एक हॉरिजॉन्टल प्लेट आपको कैसे दिखेगी? मैंने ये रोल, एग्जांपल इफ यू कैन सी माय दिस पेन, सो एक तो मैंने रोल्स यहाँ पे ऐसे लोड कर दिए इन दिस डायरेक्शन, ऐसे लोड रोल करता चला गया, इजंट इट? एंड ये जो स्पेस बची यहाँ पे मैंने इस तरफ ऐसे लोड रोल किए, एंड इस बल्कहेड के साथ मैंने इन रोल्स को ऐसे लोड करना शुरू कर दिया। दिस वे आई केम, ये 13 मीटर थी, 1 2 3, एंड इस बल्कहेड से जो आपका स्टारबोर्ड साइड बल्कहेड है, पोर्ट एंड स्टारबोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, दिस इज अ 4.5 डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने रोल्स जो हैं अथॉर्ट शिफ्ट डायरेक्शन में लोड करने शुरू किए, ये जो अथॉर्ट शिफ्ट डायरेक्शन है। सो नाउ यू गॉट हाउ मेनी रोल्स यू गॉट टोटल? 15 मैंने एक टियर में यहाँ पे आ गए, 7 into 20, 7 into 3 21, सो 15 प्लस 21 प्लस एक रोल मैंने यहाँ पे लोड कर दिया। सर ये मतलब उसके ऊपर ही कर रहे हैं ना सेकंड ईयर में? या सेकंड टीयर में एक टीयर तो मैंने लोड, एक टीयर अभी तो ये एक टीयर लोड हुआ है ना, ऊपर नहीं है ये। दिस इज सर ये जो अवेलेबल स्पेस थी टैंक के ऊपर, इसकी हाइट तो 1.74 है। करेक्ट। तो जो हमने खड़े किए हुए हैं ये कारपेट रोल, उसकी हाइट 4 मीटर है। वर्टिकल नहीं है ये, दिस इज नॉट वर्टिकल। कैन यू इमेजिन यू आर स्टैंडिंग ऑन डेक, यू आर स्टैंडिंग ऑन डेक। अगर आपने इवन टैंकर पे भी काम किया है, यू आर लुकिंग इनटू योर, आपने टैंक है जो है टैंक डोम खोला है, एंड यू आर लुकिंग डाउन बिलो इनटू द होल्ड, तो आपको होल्ड कैसा दिखेगा? कार्गो होल्ड में इफ यू आर स्टैंडिंग ऑन डेक एंड लुकिंग इनटू द कार्गो होल्ड, हाउ द होल्ड लुक्स लाइक, लुक्स टू यू? एक बॉक्स दिखता है कि नहीं दिखता है? यस सर। उस बॉक्स में अभी आपकी बेसिकली इफ यू सी now 3 dimensionally it is difficult for me to show you 3 dimensionally। बेसिकली अगर मैं देखता हूं तो मेरे को ये होल्ड ऊपर से ऐसा दिखेगा, isn't it? अब इसमें एक तरफ तो मैं रोल्स को लेटाता हूं इस तरह से, जैसे मैंने पेन पकड़ा इस तरह से मैं लोड करता चला जाता हूं, एंड दूसरी तरफ ऑन द अदर साइड बल्कहेड मैं रोल्स को 4.5 डायरेक्शन में लोड करता हूं, एक को अथॉर्ट शिफ्ट में, स्टारबोर्ड साइड बल्कहेड में। इफ यू आर लुकिंग इनटू द होल्ड स्टारबोर्ड साइड, आपने इनको, दे आर ऑल लाइंग डाउन नॉट वर्टिकली इन अथॉर्ट शिफ्ट डायरेक्शन, and on the port side bulkhead I am loading these rolls like this in 4.5 direction,
कार्गो होल्ड में नजर नहीं मारी कभी ऊपर से कंटेनर वालों ने, बल्क कैरियर। इसी चीज को मैं अगर इसको ऐसे घुमा देता हूं तो हाउ इट विल लुक, सो दे आर ऑल लाइंग डाउन, सो दिस वे 15 रोज, दिस वे 21, सो आपके एक टियर में कितने आ गए 37, सो 2 टियर्स यू विल लोड, फर्स्ट टियर 37 into 2 74 rows I can load totally in this space which is above your cotton bales. कुछ हुआ, इमेजिन हुआ कुछ? नो? नहीं विजुअलाइज हुआ? Yeah, isn't it? So अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ and if I am looking down below into the cargo hold from top, तो cargo hold मेरे को जैसे आपका एक रूम है, जिस रूम में आप बैठे हो वैसा दिखता है, isn't it? अब उस रूम की एक वॉल जो है, इस वॉल पे मैं ये कारपेट रोल इस डायरेक्शन में लोड करना शुरू कर देता हूँ। एक रोल डाला 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, एंड उसी तरह मैं आपकी दूसरी वॉल में जाता हूँ। जो वॉल आपके पीछे है वहां पे मैं जो कारपेट रोल है, यहाँ तो मैंने इस तरह से लोड किए, वहां पे मैं इस डायरेक्शन में लोड करता हूँ, लाइक दिस ऑन द अदर वॉल, द अदर bulkhead ऑफ द ट्विन डेक। सो द कारपेट रोल्स आर लोडेड इन अथॉर्डशिप डायरेक्शन लाइक दिस। एक में ऐसे आगे 4.5 डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड अथॉर्डशिप डायरेक्शन। Okay, so how much? Anybody else? You draw any drawing? किसी और तरह से can you load more than 74? चलो, कुछ जवाब नहीं आया। Is it clear or not? Yes, sir. Clear. Chalo, good. So I'll show you here like what we have done. This is your question. So इसको आपने, इसका आंसर जो है, बेल कैपेसिटी 780, ग्रेन capacity again 780, because he has not differentiated, he has just given you twin deck has bale capacity of 780 meter cube, and stowage factor of cotton bales is basically 2.34 plus the broken stowage 7.5 हमने निकाला था, very good, 2.551555। so आप ठीक है, 2 फिगर तक जाइए, 3 फिगर तक, it is enough। Volume occupied by 220 tons of cotton bales is equal to 553. Available volume for rolls is 226.59 and available height हमने निकाल रही थी 1.743. Available height was 1.743 and total number of rolls which can be loaded, which means only 2 tiers of rolls can be loaded. So इसकी जो sketch है वो आपको ऐसा दिखेगा कि I am loading on this side, I am looking from top, this is again say port side and this is starboard side. So port side में जो आपकी शिप साइड है, कार्गो होल्ड के अंदर पोर्ट साइड का जो बल्कहेड है, वहाँ पे मैं कारपेट रोल को इस तरह से लेटाता हूँ इन अथॉर्डशिप डायरेक्शन, and then I can load 15 because this is 13 meter length, so I can load 15 rolls this way lying down, and on the other side, on the starboard side of the hold, I can load these rolls in 4.5 direction. So each roll is 4 meters, 3 rolls जो है 12 मीटर ऑक्यूपाई करेंगे, 1 मीटर की स्पेस है, यहाँ पे हम एक रोल डाल दें, so that way you get total 37 into 74. So I hope clear. So you have to make this sketch in case ऐसा क्वेश्चन आता है, especially these type of questions जहाँ पे इंडिविजुअल उसकी स्पेस दी होती है, you cannot divide the total space divided by the volume occupied by one roll, because we cannot cut this roll, we cannot bend this roll. So इनको आपको, these are exported from Calcutta, these carpet rolls are used for making the carpets. Carpet का जो backing होती है वो इंडिया से ही है, जिसे हम हेसियन क्लॉथ कहते हैं, टाट, बेसिकली दैट इज द कारपेट रोल्स। ये कारपेट का क्लॉथ है कलकत्ता से। टुडे इट गोज इन कंटेनर्स। सो पहले ये ओपन जाता था, वी यूज्ड टू कैरी लाइक दिस, ओपन इन थ्रू द कार्गो होल्ड्स डायरेक्टली।
चलो ओके, नेक्स्ट वाला करें. एनी डाउट्स ऑन एनीबॉडी ऑन दिस क्वेश्चन? क्या कहते हो? चलो, सो नेक्स्ट वाला है, थोड़ा सा अलग है. दिस इज अ डिफरेंट वेरिएशन. नाउ you are going to load two different type of cargos. Whole dimensions are given. It is to be filled with steel pipes जिनका स्टोरेज फैक्टर दिया and paint drums. And here comes the load density. अब आपकी यहाँ पे load density भी आ गई. That this is to restrict you how much maximum cargo you can load. Load density is 3.2 tons per square meter. And how many tons of steel pipes and paint drums can be loaded? इस क्वेश्चन को लिख लीजिए. Then I'll explain how to go about it. बच्चा लेट मी नो जब लिख लोगे.
Yes, sir, लिख लिया. Yeah, okay. So this type of questions again एग्जाम में भी आते हैं, कॉमन है. So what do we do in this type of question is simply you have the volume of the hold with you, 8 meter by 6 meter by 4 meter, 192 meter cube. Now the maximum weight that can be loaded we can calculate from the load density. Load density is given to me 3.20 square meter per ton, isn't it? So आपकी जो load density है it is 3.2 tons per square meter. That means एक square meter में I can load only 3.2 tons. So area मेरे पास है 8 into 6. So how much I can load total weight? Area into the load density I get 153. That means in this space maximum weight I can load is 153.6. Volume आपके पास है. Now the volume available is 192 cubic meters and maximum tons I can load this. So we assume let the weight of steel pipes be P tons and let the weight of paint drums be D tons. अब इन दोनों का अगर मैं वेट ऐड करता हूँ P plus D should not be more than 153.6 because that is a permissible load. So therefore P plus D is equal to 153.6 tons. So ये मेरी एक इक्वेशन बन गई. Again I repeat, I have the total weight or the maximum weight which can be loaded from the load density. Load density is given 3.2 tons per square meter and मैंने उसको area से multiply किया. So I came to know that in this compartment I can load only so many tons. अब मैंने दो कार्गो लोड कर रहे हैं. I imagine one is P and one is D ton. So उन दोनों का वेट इस टनेज से एक्सीड नहीं करना चाहिए. और इसी इक्वेशन को मैं D की वैल्यू निकाल लेता हूँ 153.6 माइनस P. अब ये तो हो गया टन्स वाइज. नाउ लेट्स सी हाउ मच ऑफ वॉल्यूम, हाउ मच ऑफ द स्पेस these two cargoes P tons and D tons will occupy. So it is simple. अगर मेरे को स्पेस निकालनी है, suppose I am loading P tons of steel pipes and मेरे को उसका स्टोरेज फैक्टर पता है, isn't it? आ गया back to this. अब मेरे को स्पेस निकालनी है that how much space will be required if the storage factor is 1.6. So number of tons multiplied by the storage factor, isn't it? Which give you the volume. अगर मैं स्टोरेज फैक्टर से टन्स को P टन्स में लोड कर रहा हूँ, P इंटू स्टोरेज फैक्टर विल गिव यू द स्पेस ऑक्युपाइड बाय दिस स्टील पाइप्स. सिमिलरली ड्रम्स का स्टोरेज फैक्टर है 1.85 and I am going to load D tons of paint drums. So उस स्टोरेज फैक्टर को I multiply by the D tons, that will give me so much volume, how much volume is required. And इन दोनों का वॉल्यूम जो है, दोनों कार्गोज का वॉल्यूम should be or should not be more than 192. वो भी मैंने देख लिया, मेरे पास स्पेस कितनी है 192. तो ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 बनी. Now solving these equations 1 and 2, मेरे पास D की वैल्यू मैंने निकाली. So I will replace P with the D value, D or rather D with the D की वैल्यू 153.6 minus P. तो मेरे पास only P जो है वही रह जाएगा. 1.06 into P, 1.85 into D की जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ 153.6 माइनस P. तो ये आ गया आपका 192 इज इक्वल टू 192. तो यहाँ से P की वैल्यू निकाली विच इज कमिंग 116.66 टन्स एंड टोटल आई कैन लोड 153. उसमें से मैंने ये माइनस किया तो 37 टन्स ऑफ पेंट ड्रम्स. ठीक है. सो दिस इज द मेथड यू फॉलो. 117 or 116.66 tons of steel pipes and 37 tons of paint drums can be loaded. Now I want you to calculate the height of steel pipes. Up to what height your steel pipes will come.
यहाँ तक डाउट? एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर। चलो वेरी गुड। तो जरा हाइट निकालिए। अब स्टील पाइप जो है कितने मीटर तक आएंगी होल्ड में, जिसके ऊपर मैं पेंट ड्रम लोड करूंगा? हंड्रेड 16.66 टन, ठीक है, मैंने कैलकुलेट कर लिया। आपको स्टोरेज फैक्टर पता है स्टील पाइप्स का? सर 2.58 meters. वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे किया है? Sir, we have this the stowage factor of steel 1.06, and we have got the weight of P equals to 116.66. वेरी गुड। So we will get the volume यस, by multiplying them, and then we will divide it by the area of hole, that is 6 into 8. वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, सो यू सी हाउ बेसिक इट लुक्स नाउ। अब आपको समझ आना शुरू हो गया। सो इट लुक्स सिंपल, इजंट इट? सर ये एक बार ये समझा दीजिए सर 153.6। हाँ 153 बच्चे देखिए, आपकी होल डायमेंशंस आर गिवन 8 मीटर बाय 6 मीटर बाय 4 मीटर। दिस इज नॉर्मली, यस सर, यस सर। या अब आपके पास 4 मीटर इज द हाइट, मेरी लेंथ एंड ब्रेड्थ। आप जिस रूम में बैठे हो जस्ट इमेजिन दैट इज द होल्ड। तो उसकी लेंथ 8 मीटर है एंड उसकी ब्रेड्थ 6 मीटर है। आई थिंक यू कैन इमेजिन दैट रूम जिसमें आप बैठे हो दैट इज कंसीडर्ड लाइक अ कार्गो होल्ड। ऊपर से छत निकाल दीजिए, कार्गो होल्ड बन गया, नहीं? अब उसका एरिया मेरे पास आ गया 8 मीटर इंटू 6, 8 इंटू 6 किया तो मेरे पास एरिया आ गया। एंड मेरे को लोड डेंसिटी दिया। लोड डेंसिटी हमने देखा, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ योर डेक, टैंक टॉप, हैच कवर, एनीथिंग। एंड हाउ इट इज गिवन, कैसे, किस यूनिट्स में दी होती है? टन्स पर स्क्वायर मीटर। दैट मीन 1 स्क्वायर मीटर में कितने टन हम लोड कर सकते हैं। तो 1 टन का मेरे को पता है, सो आई मल्टीप्लाई विद द एरिया 8 इंटू 6 इंटू लोड डेंसिटी 3.2 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन में देखिए, द लोड डेंसिटी ऑफ द टैंक टॉप इज 3.2 टन पर स्क्वायर मीटर। तो उससे मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे को टोटल अपने होल्ड में हाउ मच कार्गो आई कैन लोड, आई कम टू नो 153.6। क्लियर? यस सर, क्लियर। या दिस इज द रिस्ट्रिक्शन। ये नहीं है कि स्पेस आपके पास ज़्यादा हो सकती है। स्पेस जैसे आपके पास 4 मीटर की हाइट है, इफ़ यू स्टार्ट लोडिंग हाई डेंसिटी कार्गो और हैवी कार्गो, लेड इनगॉट्स, निकल, कॉपर, जो थिक मेटल्स होते हैं, दे ऑक्यूपाई वेरी लेस स्पेस। बट ये नहीं कि मैंने कार्गो होल्ड को भरना है फिर तो टैंक टॉप टूट जाएगा। तो यहाँ पे आपको शिप में लोड डेंसिटी दी है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता आपका होल्ड खाली रहे। बट एनीवे इन दिस केस वी आर फिलिंग अप द रेस्ट ऑफ द स्पेस विद द ड्रम्स। तो मैक्सिमम स्पेस यूटिलाइज करेंगे 192। एंड जैसे मैंने आपको पूछा कि व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टील पाइप्स, वो भी आपने वेरी राइटली सेड दैट टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ स्टील पाइप्स वी नो वॉल्यूम इज इक्वल टू वेट इनटू स्टोरेज फैक्टर। हाउ मच वॉल्यूम अ commodity will require for a particular number of tons, so we multiply by storage factor, we come to know so many cubics required, or volume is equal to itne into itne 123, so 116.66 tons of steel pipe will require only 123 meter cube, 123.66 meter cube of space। अब मेरे पास वॉल्यूम आ गया, now I can calculate the height, just divide by area। I hope clear? Yes, sir. चलो गुड। सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ गई, स्टोरेज फैक्टर क्या चीज़ है, वॉल्यूम कैसे निकालना है, वेट कैसे निकालना है। सिंपल, वॉल्यूम निकालने के लिए वेट मल्टीप्लाई, आपको टन्स दिए हुए कि 500 टन ऑफ पर्टिकुलर कार्गो, स्टोरेज फैक्टर इज 2 मीन्स 2 मीटर क्यूब पर टन। दैट मीन्स 1 टन ऑक्यूपाइज 2 मीटर क्यूब, 500 टन विल ऑक्यूपाई मल्टीप्लाई 1000 मीटर क्यूब। एंड अगर मेरे को वेट निकालना है, स्पेस दी हुई है सेम 1000 मीटर क्यूब कैन टेक हाउ मेनी टन्स ऑफ कार्गो इफ द स्टोरेज फैक्टर इज 2 मीटर क्यूब पर टन। तो अब मैं डिवाइड कर दूंगा, अब आपके पास ये हाइट आ गई। ओके, तो ये तो
हम बाद में करेंगे। इसके साथ ही एक और है। Now this will be quite fast. Now I want you to do this. कार्गो होल्ड की डायमेंशन दी है, कैपेसिटी दी है, लोड डेंसिटी दी हुई है, एंड कार्गो अवेलेबल इज स्टील प्लेट्स, इसका फ्रेट भी दिया है, एंड कॉटन बेल्स, उसका भी आपको स्टोरेज फैक्टर एंड फ्रेट। Now calculate how much of each cargo will you load and what is the freight earned.
Yes, sir, done. Okay, how much you got? Sir, weight of steel billets is 314.29 tons, Okay, and weight of cotton bale is 1335.71 tons. yeah, okay, you got steel billets, how much you got? Sir, 314.29. 1.4. And steel pipes and cotton bales? 1335.7. 1335.7. टोटल आपका आया 1650, isn't it? कॉटन बेल्स आपकी आ रही है 1307 एंड 342. देखिए कहाँ गलती की आपने, कैपेसिटी ये ली है 3900 बेल कैपेसिटी और टोटल वॉल्यूम तो नहीं ले लिया. I hope you have taken the bale capacity, that is the volume available for loading. Yes, sir. 1307.42. Hmm. So 342 point something and 1307 point something, isn't it? Okay, so you can see here. Now ये तो आपका जो वॉल्यूम है, this is again the grain capacity. Okay, we don't call it grain capacity. This is the total volume. So total volume is length, breadth and depth. That is not the grain capacity. Grain capacity भी थोड़ी कम होती है because उसमें से भी space occupied by frames and all that minus होता है. So this we don't call it a this thing grain capacity. Rather we'll call it a total volume of the hold. So it is so much as per length, breadth and depth. And bale capacity he has given specially 3900. So we are going to load this cargo which is for where we need the bale capacity, not the volume. 3960 नहीं है, 3900. Load density is also given 5 ton per square meter. तो मेरे पास टोटल कार्गो आ गया, एरिया इंटू लोड डेंसिटी 1650. अब दोनों को मैंने एज्यूम किया, लेट एस बी द स्टील बिलेट्स एंड सी बी द कॉटन. इन दोनों के टन, सो एस प्लस सी दोनों के टन शुड बी इक्वल टू 1650. इससे ज़्यादा कार्गो नहीं होना चाहिए. तो मैं सी की वैल्यू निकाल लेता हूँ. 1650 माइनस एस, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1. एंड सिमिलरली मल्टीप्लाई बाय द स्टोरेज फैक्टर. स्टील बिलेट्स 0.7, so 0.7 into S plus 2.8 into C, that should be equal to 3900. तो ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई. अब इन दोनों को मैं सॉल्व करता हूँ. मेरे पास C की वैल्यू है, रिप्लेस S की जगह मैं C की वैल्यू डाल देता हूँ दोनों जगह. तो C की जगह I will put this 1650 minus S. This is basically solving equation 1 and 2. So I get steel billets 342.86 and cotton bales 1307. टोटल 1650 में से 342 माइनस किया 1307. अब आपने जब फ्रेट निकालना है, यू गॉट टू बी केयरफुल हियर. सो एक के ऊपर तो फ्रेट इज पेड पर टन ऑन द स्टील एंड दूसरे के ऊपर फ्रेट इज पेड पर क्यूबिक मीटर बिकॉज इट्स अ वॉल्यूमिनस कार्गो कॉटन बेल्स. सो जब आपने ये निकालना है तो यहाँ पे आपने टन्स यूज करने हैं. 342 इंटू $70 इतना फ्रेट. एंड कॉटन बेल्स के लिए आपके पास टन्स हैं, यू गॉट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम. सो मल्टीप्लाई बाय द स्टोरेज फैक्टर एंड देन द फ्रेट 50 से. दिस विल गिव यू द टोटल फ्रेट. तो यू गॉट टू बी केयरफुल हेयर. ठीक है, यहाँ थोड़ा सा आपने अगर फ्रेट निकालना है, एक में टन्स है एक में मीटर क्यूब है. सो दिस क्वेश्चन गिव्स यू अ वेरी गुड प्रैक्टिस ऑफ हाउ टू कैलकुलेट वॉल्यूम, हाउ टू कैलकुलेट वेट. चलो, आई होप क्लियर. एनी डाउट्स? ठीक है बच्चे, एरर पता लगी कहाँ पे थी. सो यू गॉट टू बी केयरफुल हियर. बेल कैपेसिटी दी है, अगर नहीं दी है देन वी एज्यूम
the total volume जो है उसका, that is considered as the bale capacity, because we cannot calculate. Either he has to give the bale capacity or he says these dimensions are excluding those frames and all that. Okay, so इसमें आपने वरी नहीं करना कि यार मेरे को उसने dimensions दे दी हैं, he has not mentioned it is bale capacity or cubic capacity or grain capacity. So अगर if he may give you the dimensions, assuming these dimensions are, अभी हमने bale capacity की definition पढ़ी, the dimensions are taken from inside of the frames, inside of the stiffeners, that is the bale capacity. यहाँ तो उसने clearly लिख दिया, नहीं लिखा होता आप एक लाइन लिख सकते हो, assuming the dimensions given are for the bale capacity, तो आप इसकी bale capacity निकाल लो. ठीक है बच्चे, clear to everyone? Yes, sir. चलो. Yes, sir. Yeah, okay बच्चे. So any time don't hesitate, please. कुछ भी नहीं आता, एक बार समझ आ गया फिर आपको सिंपल लगना शुरू हो जाएगा. फर्स्ट टाइम यस, कहीं पे भी किसी स्टेज पे भी आई एम वेरी हैप्पी कि सर ये कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट. बट चुप रहते हो, फिर मेरे को थोड़ा सा डाउट आता है कि यार कोई फीडबैक नहीं आ रहा, हाँ या ना, समझ आया नहीं आया. इस स्टेज पे आपको कुछ भी नहीं आता, आई कैन रिपीट, वापस व्हाइट बोर्ड है उसको मिटाना ही है, दोबारा से लिख देंगे, तब क्या होगा. चलो, वी मीट इन द आफ्टरनून आफ्टर दिस अनदर क्लास आई हैव, देन वी विल कंटिन्यू विद दैट विंड की आपको थोड़ी सी बिफोर स्केल दिखाऊंगा क्या होता है, एंड देन वी गो टू द विंड ट्रायंगल. सो प्लीज कीप योर ज्योमेट्री बॉक्स, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स विद यू. सो ग्राफिकली उसको बेसिकली कैलकुलेट किया जाता है स्केल के ऊपर, दैट सो मेनी नॉट, so much direction. So पूरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स साथ रखिए, एंड देन वी डू द विंड ट्रायंगल. ओके, Thank you, sir. या ओके बच्चे, बाय बाय. थैंक यू सर. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बच्चे, वेलकम, बाय बाय. Thank you, sir. या वेलकम.